वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਡੇ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਡੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਡੇ ਨੰਬਰ 2 ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1, ਜਦੋਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ। ਜੀ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਗਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1 1 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 1 ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ x ਪਲੱਸ y ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ 1 ਲੈ ਲਾਂਗੇ x ਪਲੱਸ y ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? x ਪਲੱਸ y ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ 1, ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ 1। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ x n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ x ਪਲੱਸ y ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2xy ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 1। फिर n इज इक्वल टू अगर 3 ले लांगे तो वो आएगा 1 3 1 3 3 1 13 31 121 13 31। n इक्वल टू 4 लैन पे आएगा 1 4 6 4 1। ठीक है जी, 1 4 6 4 1। n इज इक्वल टू 5 पे आएगा 1 5 10 10 5। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਚ ਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਚ ਰੋ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾਈ, ਈਚ ਰੋ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ। ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1 ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? 1 ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 1 2 1 ਇਹ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਉਣਗੇ ਜੋ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ 13 31 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਉਣਗੇ। n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ 14641 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 15 10 10 5 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਈਚ ਰੋ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾਈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 1। ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ? ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਸਕਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਾਰੇ। चलिए मूव करिए अगे। ओके जी, ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ग्रेटेस्ट टर्म ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 प्लस, अगर अपने को 1 प्लस x की पावर n है, x का कोफिशिएंट भी ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने का मेथड होएगा k इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू x डिवाइड बाय 1 प्लस x। फिर ये होता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करने का मेथड। या फिर एक और भी मेथड होता अपने को, और वो होता n प्लस 1 1 प्लस 1 बाई x। एक ही गल है, अगर एलसीएम ले लांगे तो x ऊपर चल जाएगा। ठीक है जी, ये होता है अपने को ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने का मैथड। ग्रेटेस्ट टर्म ਹੁਣ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ k ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ,
के अगर अपने को आ गया कोई भी इंटीजर आ गया तो अपने को टर्म बन जाएंगे दो, एक तो टी के टर्म बन जाएगी, एक टी के प्लस 1 टर्म। ठीक है जी। अगर के आता है इंटीजर, अगर के अपने को आ गया नॉन इंटीजर, के की आ गया नॉन इंटीजर आ गया, नॉन इंटीजर, तो फिर अपने को की आएगी टी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ के प्लस 1, फिर अपने को जी टर्म है आ वाइट। गल क्लीयर सब नु जी। के अगर इंटीजर है तो टी के प्लस 1, अगर के नॉन इंटीजर है तो टी ग्रेटेस्ट टर्म के दी प्लस 1। क्लीयर हो गया। चलो आओ एक एग्जांपल करते हैं, अपन बिल्कुल चंगी तरह क्लीयर हो जाएगा। देखो 1 प्लस एक्स की पावर की है 9, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है 4 x इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू कितनी 1/2, तो लगाओ जी। ए का फॉर्मूला लगा दिता n कितना अपना 9 प्लस 1 इंटू की सीगा x ओदी वैल्यू 1/2 डिवाइड बाय में 1 प्लस x यानी कि 1/2 की फॉर्मूला सी मैं दोबारा लिख दिना a इक्वल टू सीगा n प्लस 1 x 1 प्लस x। ठीक है जी। x से मोड़ दे विच हुंदा, चलो कोई गल नहीं। ये अपना आएगा 10 इंटू 1/2, नीचे कितना हो गया 3/2, आई टू कैंसिल, ये हो गया 5, ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 3/2, ऑल ओवर कितना आ गया 10/3, 10/3 आ गया। एक ही बन गया 3.3 था, ये इंटीजर नहीं आया, एक ही अपने को नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣੇਗੀ t ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, ਤਾਂ 3.3 ਦਾ ग्रेटेस्ट इंटीजर ਕੀ ਬਣੇਗਾ 3 ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ t3 प्लस k, ਤਾਂ t4, ਤਾਂ फोर्थ टर्म बन जाएगी अपने को। ਜਿਹੜੀ ग्रेटेस्ट टर्म होएगी वो ਕਿਹੜੀ टर्म होएगी, फोर्थ टर्म होएगी ग्रेटेस्ट टर्म। हाँ जी क्लियर हो गया सबनों फॉर एग्जांपल, क्लियर, क्लियर हो गया। तो एक एग्जांपल हो ले लीजिए, वन एग्जांपल आप हो ले लेने। देखो ग्रेटेस्ट टर्म आप फाइंड करनी है, ग्रेटेस्ट टर्म ग्रेटेस्ट टर्म ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ 3 प्लस 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 9, x ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। 3 प्लस आई होएगा, हम ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1, तो 3 कॉमन ला लो, तो आएगा 1 प्लस 2y3x ਦੀ ਪਾਵਰ 9 आ बन गया। हम लगा दो जी n, n कितना 9 प्लस 1 x, x की जगह कितना हम 2y3x, नीचे 1 प्लस 2y3x, बस इतने 1 होना चाहिए, 1 प्लस कोई भी टर्म होएगी x के नाल वो सारी इतने आ जाएगी। ठीक है जी। ये बन गया, एक के इक्वल चल रहा है तो के इक्वल टू कितना आ गया 10, x की वैल्यू तो 1 है दी हुई है, एक पुट कर देंगे तो ये ऑलरेडी रह गया 10 इंटू 2/3, नीचे हो गया 3 प्लस 2 5/3, ऊपर हो गया 20/3, नीचे कितना हो गया 5/3, तो 3 ना 3 कैसे 4 ना आ गया 4, तो 4 की अपने को इंटीजर है, 4 इंटीजर है, तो इतने अपने को ग्रेटेस्ट टर्म कितनियां होणगियां 2, ग्रेटेस्ट टर्म्स कितनियां होणगियां जी 2 हो जाएगा, एक दा टी के और दूसरी टी के प्लस 1, जो के इंटीजर आता है, जो के की होंगे अपने को इंटीजर होंगे, तो टी के की वैल्यू 4, एक T4, एक टी के प्लस 1 यानी कि फिफ्थ टर्म, तो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म जी होएगी अपने को वो ग्रेटेस्ट टर्म। हो गया जी क्लीयर सबनों ये क्वेश्चन, सबनों क्लीयर डन। चलो जी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आप किवें फाइंड करांगे जी, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करने का अपने को मैथड होएगा, अगर n अपना इवन है, अगर n इवन है तो अपने को ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बन जाएगा n c n y
2 ठीक है। ऊपर लाइन उसका हाफ करके बस वो आएगा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। क्लियर। एन सी एन वाई 2 ये होएगा अगर एन इवन है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बनेगा एन सी एन वाई 2। अगर अपने को एन है और एन की है जी और एन और है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कितने होंगे दो होंगे किहड़े किहड़े एन सी एक तो एन प्लस 1/2 क्योंकि ओड नंबर तो 2 ਨਾਲ डिवाइड हो नहीं सकता तो आप 1 ऐड करांगे एक आएगा एन सी एन प्लस 1/2 प्लस 1 चाहे आप इनू ऑल च पा के इदा भी लिख सकते हैं एन सी एन प्लस 3/2 ठीक है जी। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ध्यान च रह जाएगा। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किवें फाइंड करना है हाँ जी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट सबनों ध्यान दे विच रह जाएगा किदां फाइंड करना है आपां ने एन अगर इवन है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होएगा एन सी एन अपॉन 2 एन सी एन बाय 2। अगर एन ओड है अगर एन ओड दिता हुआ तो एन सी एन प्लस 1/2 एन सी एन प्लस 1/2 प्लस 1 ये होंगे अपने को ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है जी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का पता लग गया सबनों। जिवें हुण अपने कोल एग्जांपल आपां लईए अगर अपने कोल आ गया 1 प्लस एक्स दी पावर 10 ਇਹਦਾ ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आपां फाइंड करना ਕੀ फाइंड करना जी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो हम देखो एन दी वैल्यू कितनी 10 एन की है इवन है तो एन बाय 2 कितना आएगा 10/2 वो आ गया 10/2 5 तो ਜਿਹੜਾ ਦਾ ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होएगा वो होएगा 10c5 10c5 में सॉल्व कर लो 10 9 8 7 अपॉन 5 4 3 2 ठीक है जी। हाँ 5 4 ਨਾਲ करता 2 5 ਨਾਲ करता 2 ठीक है जी 3 ਨਾਲ करता आ वाला 3 5 ਨਾਲ करता आ वाला 2 6 into 7 42 अगला ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 42 तो 6 भी आना सी ना 5 और 2 तक क्या है ओनली 6 भी आना सी तो इन्ना 6 ना होर मल्टीप्लाई कर दो 12 24 252 ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कितना आएगा 252 आ जाएगा। अगर अपने को एन होंदा और देखो जी एन अगर और होंदा 1 प्लस एक्स दी पावर 9 ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ फाइंड करना है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट तो हुण इन्ना की अपने को एन 9 है वो की है ओड है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कितने होंगे दो केड़े केड़े एन सी एक तो एन प्लस 1/2 एक एक होएगा एन सी एन प्लस 1/2 प्लस 1 तो सब तो पहला देखो जी पहला 9c एन प्लस 1/2 यानी कि 10/2 5 9c5 और दूसरा होएगा 9c6 तो 9c5 में सॉल्व कर लांगे 9c6 में सॉल्व कर ये दोनों की आ जाएंगे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आ गल क्लियर होगी जी सब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बारे नो अबाउट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जी सब क्लियर हुई। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ जी तुसी करो जी क्वेश्चन जल्दी 1 प्लस एक्स दी पावर 12 ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करो जी ਇਹਦਾ जल्दी तो जल्दी 1 प्लस एक्स दी पावर 12 ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देखते हैं सब तो पहले की आंसर आता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करना है अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखो जी सब तो पहले की करांगे आप एन की है 12 12 मीनस इवन है ना इवन इवन तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का फॉर्मूला एन सी एन बाय 2 यानी कि 12 सी एन बाय 2 6 12 सी 6 हम सॉल्व कर लांगे 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये बनेगा 12 में कर लो 12 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल तो नीचे कट हो जाएगा
6 5 4 3 2 1 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। 5 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ 2, 4 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ 2, 3 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ 3, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਭ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ठीक है जी, किसी ने कढ़िया आंसर फाइंड किया मल्टीप्लाई करके आंसर अपना टाइप कर दो जो किसी ने फाइंड किया है। ठीक है चलो ये तो हो गया। अगर इवन सीगा ओड वाला भी करो जी, ओड वाला भी करके दिखाओ। 1 प्लस एक्स दी पावर 7, चलो बिल्कुल छोटा या दिन ज्यादा बड़ा नहीं। 1 प्लस एक्स दी पावर 7 ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करना। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 7 ਹੁਣ n ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ 7 7 ਕੀ ਹੈ ਓਡ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। 7 ਕੀ ਹੈ ਓਡ ਹੈ ਨਾ। 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਡ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ NCn + 1/2 ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ NCn + 1/2 + 1 ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 7C n + 1 8 8/2 4 ਤਾਂ 7C4 ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 7C5 7C4 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 7 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ अपॉन 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 4 फैक्टोरियल तक कट्टी हो जाएगा 3 × 2 ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 7 5 35 ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 35। ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 7C5 ਨੂੰ 7 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 6 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੋਂ नीचे कट हो जाएगा नीचे बचेगा एक 2 ਤਾਂ 2 ਇਹ आएगा 3 ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 21 ਤਾਂ 35 ਤੇ 21 दोनों की आ गए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का इस क्वेश्चन क्लियर। चलो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का यानी कि अगर आप गल करिए 1 + x दी पावर n ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਗੇ nc0 + nc1 सिर्फ आप कोफिशिएंट लिख रहे हैं nc2 + nc3 अप टू सो ऑन की होंगे ncn। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n। अगर मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ nc0 ਗਾਇਬ ਕਰਦਾ nc1 + nc2 + nc3 1 ਤੋਂ अगर लैके n तक मेरा सम जाएगा n तक जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर n nc0 कितना होगा 1 तो 1 इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा 2 दी पावर n - 1 क्लियर 2 दी पावर n - 1 अंडरस्टैंड जी। फिर आप गल करते हैं ओड और इवन की। अगर ओड अपने कोल टर्मां ने अगर जा इवन ने C0 C2 C4 जिन्हें कि NC0 NC2 NC4 अप टू इवन ठीक है जी इक्वल होएंगे ये ओड दे इन्हां दोनों का सम इवन दा ते ओड दा इक्वल होएगा NC1 + NC3 + NC5 अप टू सो ऑन तो कितना होएगा वो होएगा 2 दी पावर n - 1 ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਆਲ ਓਵਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲ ਓਵਰ ਟਰਮ ਚੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ n - 1 ਹੋਏਗਾ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1 क्लियर हो गया जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन आई थिंक कि अगर आप टोटल सम फाइंड करना है तो 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n अगर अपने को 0 वाला कोफिशिएंट नहीं हैगा तो वो आएगा 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1 अगर अपने को ਕੱਲੇ ਇਵਨ ਦਾ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਉਸ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n - 1। ਚਲੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ जल्दी जल्दी आप 3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है 14C0 + 14C2 + 14C4 अप टू 14C40 14C40 दसो जी ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 13 - 1 बी ऑप्शन 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 14 सी ऑप्शन
टू दी पावर 14 माइनस 1 या फिर सी ऑप्शन ओनली टू दी पावर 30। एक तो ए क्वेश्चन जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 पा लो, ठीक है, 1 का आंसर रिप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 11C1 11C3 11C5 प्लस 11C10। ऑप्शन जी ए ऑप्शन टू दी पावर 10 माइनस 1, बी ऑप्शन टू दी पावर 10 प्लस 1, सी ऑप्शन टू दी पावर 11, डी ऑप्शन टू दी पावर 11 माइनस। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा अपने को, थर्ड क्वेश्चन आ गया जी 10C0 10C1 10C2 up to 10C10। ਇਹਦਾ ਆंसर दसो जी जल्दी कितना आएगा। ए ऑप्शन है जी टू दी पावर 9, बी ऑप्शन टू दी पावर 10 माइनस 1, सी ऑप्शन टू दी पावर 10, डी ऑप्शन टू दी पावर 10 माइनस 2। आ तीनों क्वेश्चन करो पहला। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होना सबका, हाँ जी सबका हो गया। तो की है जी देखो सारे ईवन ने, ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 14 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਈਵਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 n ਕਿੰਨਾ, ਹਾਂਜੀ n ਕਿੰਨਾ 14 ਮਾਈਨਸ 1, ਇਹ ਆਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 13। ਇਹ ਜੀ ਆंसर आएगा 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 30, डी ऑप्शन राइट 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 30। दूसरा ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, दूसरे का तो कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, ये अपने को कर दो 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 10। हम दूसरे ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਓਡ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ फोर्थ पावर में, ओड पावर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 11 ਮਾਈਨਸ ਆंसर ਆਉਣਾ ਸੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਹੋਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 10। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ 1 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰਮਸ ਨੇ 10 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਓਨਲੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 10। ऑप्शन नंबर सी 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 10। क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चन। अगर A1 आउंदे ने कल्ले ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n-1, अगर इकल्ले ओड आउंदे ने ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n-1, अगर सारे आउंदे ने टोटल सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा जाता है ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n। क्लियर जी। अगर इथों मैं की करा फोर्थ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ इथों मैं ध्यान दो, अगर कैंसिल ही हो गया ना सब, चलो इत्थे लिख देंगे आप क्वेश्चन। अगर अपने कोल होवे 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10, हुण इहदा आंसर दसो जी कितना। 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C0। ऑप्शन देव जी, ऑप्शन है ए ऑप्शन 2 ਦੀ पावर 10, बी ऑप्शन 2 ਦੀ पावर 9, सी ऑप्शन 1023, डी ऑप्शन ना। देखते हैं जी कौन करेगा इसमें। ए ऑप्शन 2 ਦੀ पावर 10, बी ऑप्शन 2 ਦੀ पावर 9, सी ऑप्शन 1023, डी ऑप्शन ना। ਇਹਦਾ आंसर अपने को आएगा सी ऑप्शन 1023, क्योंकि ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 2 ਦੀ पावर 10, बट ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 10C0 ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਧਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1024, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 1023 ਆंसर आ गया। क्लियर हो गई सब सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हाँ जी क्लियर एवरीथिंग। अगर इतों तक क्लीयर है तो प्लीज दस दो जी, यस लिख दो या क्लियर लिख दो। अगर इतों तक सारे क्लीयर हो गया सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगर ऑल ओवर अपन टोटल सम पूछा जाए तो 2 ਦੀ पावर n, अगर इवन का या ओड का पूछा जाए तो फिर होंगे वो 2 ਦੀ पावर n माइनस। क्लियर। मल्टीनोमियल थ्योरम,
मल्टीनोमियल थ्योरम भी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जी अपने को की करते हैं आप मल्टीनोमियल तो मल्टीनोमियल थ्योरम अपने को की आएगी अगर आप फाइंड करना कोफिशिएंट यानी कि अपने को दो ने x1 प्लस x2 फिर एदा पावर n हैगी है तो आप कोफिशिएंट फाइंड करने ने x की पावर 1 दा ते x की पावर 2 दा कुछ भी मतलब x की 1 दा कुछ भी कोफिशिएंट a बोल दो x की 2 दा b बोल अगर आप कोफिशिएंट फाइंड करना ठीक है एदा कोफिशिएंट फाइंड करना इस तरह तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮਲਟੀਨੋਮੀਅਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਮੀਸ਼ਨ x1 ਦੀ ਪਾਵਰ x1 ਦੀ ਪਾਵਰ r1 x2 ਦੀ ਪਾवर r2 फिर r1 r2 की है जो कोएफिशिएंट है वो फाइंड करते हैं क्या पता है a भी बोल सकते हैं और नीचे आएगा उस r1 का फैक्टोरियल और r2 का फैक्टोरियल और नाल आएगा n फैक्टोरियल नाल टोटल जिन्नी आह पावर यानी कि आप इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं ओ च x1 की पावर a x2 की पावर b नीचे a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल नाल n फैक्टोरियल ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੀ ਕਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ x y z ਤਿੰਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ r1 y ਦੀ ਪਾਵਰ r2 ਤੇ z ਦੀ ਪਾਵਰ r3 ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ r1 r2 r1 r2 r3 ये तीनों मिलके किदे इक्वल होने चाहिए ने n दे इक्वल होने चाहिए किदे इक्वल होने चाहिए ने n दे इक्वल होने ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ r1 r2 n ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸਮੇਸ਼ਨ x1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੌਰੀ x ਆਉਂਦੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ r1 y ਦੀ ਪਾਵਰ r2 z ਦੀ ਪਾਵਰ r3 अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल ठीक है जी क्लियर हो गया सबनों क्लियर हो गया ये क्वेश्चन जो नहीं होया ठीक है जी अगर आप इन जनरल की गल करिए इन जनरल आप कितना लिखांगे x1 r1 x2 r2 x3 r3 so on डिवाइड बाय में r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल सो ऑन और ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल ठीक है क्लियर हो गया ये है जनरल किसका जनरल x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन कितने टर्म भी होवे ਉਹਦੀ पावर n हो मल्टीनोमियल क्लियर हुई जी सबनों हाँ जी सबनों मल्टीनोमियल थ्योरम क्लियर है या नहीं हो गई क्लियर मल्टीनोमियल चलो आप एक क्वेश्चन करते हैं अपने को की है x प्लस y प्लस z दी पावर 8 ये क्वेश्चन है आप की फाइंड करना है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ इधर x दी पावर 2 y दी पावर 4 और z दी पावर 2 फिर इहदा कोफिशिएंट फाइंड कर तो सब तो पहला जिहड़ा आपां तरीका पहले नंबर ते वो इन्ना दा सम देखो 2 4 6 प्लस 2 8 यानी कि 8 इक्वल टू 8 बनना चाहिए बन गया ठीक है लगा दो मल्टीनोमियल समीशन x1 यानी कि x दी पावर r1 यानी कि 2 x दी पावर 2 y दी पावर 4 z दी पावर 2 नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और नाल आ जाएगा 8 फैक्टोरियल ठीक है इसका कोफिशिएंट की बन जाएगा हम पता हो गया x² y4 z2 इसका कोफिशिएंट 8 फैक्टोरियल में सॉल्व कर लो 8 × 7 × 6 × 5
4 फैक्टोरियल का कट हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 और इधर का भी 2 फैक्टोरियल 2 ये कट हो गया ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਮਲਟੀਨੋਮੀਅਲ ਥਿयोरम ਸਭ ਨੂੰ हाँ जी मल्टीनोमियल थ्योरम क्लियर हो गई चलो जी की पॉइंट की है जी की पॉइंट यही है कि अगर एन सी आर हो गए या ए बोल दो एन सी ए हो गए इक्वल टू हो गए एन सी बी दे एन इक्वल टू की होएगा ए प्लस बी होएगा एन सी ए हो गए इक्वल टू एन सी बी हो गए तो एन इक्वल टू की होएगा ए प्लस बी होएगा ठीक है जी एक की पॉइंट है अपने को एन सी ए हो गए इक्वल टू एन सी बी हो गए तो एन इक्वल टू की होएगा ए प्लस बी होएगा फिर सैकेंड अगर आप बायनोमियल थ्योरम दे विच टर्म फाइंड करनी हो गए ठीक है जी बायनोमियल दे विच टर्म फाइंड करनी हो गए फ्रॉम एंड ठीक है जी आप कह रहे हैं फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड अगर एंड तो फाइंड करनी हो मान लो अपन दे रखा x प्लस ए दी पावर 5 तो उन्होंने बोलता थर्ड टर्म फाइंड करो थर्ड टर्म फ्रॉम एंड ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ x plus a ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਐਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ a plus x ਦੀ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਸ ਥਰਡ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ t 2 plus 1 ठीक है जी r की होगा 2 का 5c2 a दी पावर 3 x दी पावर 2 ये अपने को बन जाएगी थर्ड टर्म फ्रॉम एंड ठीक है जी फ्रॉम एंड ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਐਂਡ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एंड तो सिर्फ कर देना इसका उल्टा चलो जी क्वेश्चन करिए अपने को क्वेश्चन है x प्लस वाई दी पावर 12 x प्लस वाई दी पावर 12 क्वेश्चन की है फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड तो फिफ्थ टर्म फाइंड करनी की करांगे आप एंड तो इनू कर देंगे y प्लस x की पावर 12 हम फिफ्थ टर्म हैगी है तो की हो जाएगा t 4 plus 1 ठीक है जी तो वो आएगा 12 c r4 y की पावर 12 minus 4 8 x की पावर 4 इनू आप सॉल्व कर देंगे ये अपने को बन जाएगी फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ठीक है जी फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड क्लियर हो गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ओके जो पूछ लेंगे हम एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगो मतलब शुरू तो कैमी टर्म होएगी अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड है तो अगो अगले साइड तो यह केड़ी टर्म होएगी अगली टर्म अगों केड़ी टर्म होएगी तो देखो जी y दी पावर 8 आ गया y दी पावर 8 x दी पावर 4 अगर आप अगों कर दे तो y दी पावर 8 तो y दी पावर 8 पीछे है तो y दी पावर 8 का मतलब की है r8 है ठीक है जी y दी पावर 8 का मतलब की r अगर आप सही इसे तरीके नाल सॉल्व कर दे तो इत्थे की आना सी x दी पावर 4 y दी पावर 8 ठीक है जी आई आना सी y दी पावर 8 का मतलब की है r8 है तो वो केड़ी टर्म हो जाती है अपने कोल 9th टर्म हो जाती 9th टर्म ठीक है जी 9th टर्म क्लियर या फिर एक दा फार्मूला भी हुंदा अपने को शॉर्ट ट्रिक भी हुंदी है इसे दी x plus y दी पावर 12 फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम n तो फिर ਉਹਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ n plus 1 minus r plus 1 minus r plus n कितना जी 12 plus 1 r कितना यानी कि फिफ्थ टर्म हैगी है फिर प्लस 1 13 माइनस 4 ताकि आ गई है 9th टर्म मतलब अगों कैमी टर्म होएगी 9th टर्म होएगी
अगर आप अगली साइड तो 9th टर्म फाइंड कर देंगे तो पिछली साइड तो 5th टर्म ऑटोमैटिक बन जाएगी ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਲਟ ਕਰ ਦੋ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਓਵਰ ਚਲੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 2 ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਆਣਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ NP P plus Q लगा दो जी n कितना 10 p कितना 1 p plus Q 1 plus 1 तो कितना आ गया जी 10 upon 2 5 r 5 आ गया की हो जाएगी टर्म ये 5 plus 1 10 c 5 अगर टर्म पूछी जाती इत्थे कांस्टेंट टर्म पूछी जाती तो वो आ जानी सी 6th टर्म 6th बनती है कांस्टेंट टर्म 6th बनती 10 c 5 x की पावर 5 1 minus x की पावर 5 10 c 5 का कोएफिशिएंट कितना होता है 252 लेकिन x ਦੀ 5 ਨਾਲ x ਦੀ 5 ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ 5 ਓਡ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 252 ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਲਗਭਗ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਚਲੋ ਜੀ क्वेश्चन नंबर 12 देखो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੱਸਣਾ 1 plus x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ n ਅਗਰ ਇਵਨ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਵਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ n ਇਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ NC/2 1 plus x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਅਗਰ n ਹੋਵੇ ਔਰ लार्जेस्ट कोएफिशिएंट या ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट या लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कोई वाला है तो होता है NC(n+1/2 और या एक हो और नहीं एंड तो दोनों होंगे एंड आएगा और नहीं आएगा NC(n+1/2 + 1 अब n देखो जी 24 है 1 plus x ਦੀ ਪਾਵਰ 24 तो 24 की है जी इवन है क्या तो ये आएगा 24c 24 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 12 ਤਾਂ 24c12 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਰਾਈਟ 24c12 ਇਹਦਾ ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्लियर हो गया देखो विदिन क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो रहे ने ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट या लार्जर कोएफिशिएंट ਦਾ ਇਹਦਾ क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ 24c12 अगर मैं हम तुम देखो जी क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 plus x की पावर 50 लार्जेस्ट कोएफिशिएंट विद इन सेकंड आंसर आ जाएगा की आएगा 50c25 बस अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 plus x की पावर 60 ਤੁਹਾਡਾ विद इन सेकंड की आंसर आएगा 60c30 बस आ अपने को कम है जी अगर ओड होएगा तो आपको पता दो आएंगे ठीक है जी दो आएंगे ओड वाला भी कर दो 1 plus x की पावर अगर मैं तो देना 21 तो तुसी की कहोगे 21c/11 और 21c12 बस कुछ भी टाइम नहीं लगना विद इन 5 सेकंड अपना आंसर आएगा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट या लार्जेस्ट कोएफिशिएंट चलो क्वेश्चन नंबर 30 द टर्म ऑफ टर्म्स दसनिया जी कितने टर्म्स ने की फॉर्मूला किया सी चेते करा देने ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਗੇ x + y + z ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ n + 3 - 1 c k यानी कि 3 यानी कि ऑल ओवर ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ n + k - 1 c k - 1 a + b + c ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 10 10 k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 3 - 1 c 3 - 1 आ गया 12c2 सॉल्व कर लो जी 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल ये होएगा 12 into 11 क्योंकि 10 फैक्टोरियल का कट्टे जाना नीचे 2 तो ये आएगा 6 ऑल ओवर आंसर 66 ऑप्शन डी विद इन सेकंड आंसर आ गया नीचे
दसो किवें दी लगदी है क्लास वधिया ना हुण विदिन सैकेंड अपने की हो रहे ने आंसर आ रहे जस्ट 5 सेकंड हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन लार्जेस्ट टर्म दसनी है केड़ी बनेगी ਆਪਾਂ ਇਹ कर चुके हैं इस नाल दा क्वेश्चन 3 + 2x दी पावर 50 सब तो पहला काम इत्थे 1 होना जरूरी है 1 बनाओ जी ये आएगा 3 दी पावर 50 बाहर आ जाएगा ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 50 ਦੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ 1 + 2 by 3x ਦੀ ਪਾਵਰ 50 ठीक है जी ये हो गया और लगा दो जी n + 1 n + 1 फॉर्मूला मैं एक बार चेते करा रहा तो हम n + 1 x 1 + x ये फॉर्मूला होंगे n + 1 50 + 1 x x कितना जी अपने को 2/3x नीचे 1 + 2/3x ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1/5 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 51 2/3 into 1/5 नीचे 1 + 2/3 into 1/5 ये तो कैंसिल हो गया कैंसिल कोई नहीं हो सकता ना नहीं होएगा ये 51 तो ऊपर बन गया 102 नीचे की बन गया 15 और इतने अगर एलसीएम लवांगे तो 15 एलसीएम ऊपर बन गया 15 + 17 15 और 15 कैंसिल 102/16 तो 17 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ हैं तो 102 ਆਉਂਦਾ 17 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ 6 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ 6 ਇੰਟੀਜ਼ਰ है 6 अपने को की है इंटीजर इंटीजर है जी इंटीजर है तो केड़ी टर्म आएगी 6 + 7 अपने को आ जाएगी 7 ऑप्शन नंबर सी 7 ठीक है जी 7 टर्म आ चुकी क्लियर चलो क्वेश्चन नंबर 15 द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 आप एक फार्मूला कीता सी कल r = np अपॉन p + q ये फार्मूला किदों है ਜਦੋਂ फाइंड करनी होवे कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म फाइंड करनी है बट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ k फाइंड करनी हो x ਦੀ ਪਾਵਰ k ਉਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ r = np - k np - k डिवाइड बाय p + बस जो फाइंड करना होंगे ਉਹਨੂੰ माइनस कर ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 7 फाइंड करना है तो सब तो पहला r = n n कितना 9 p कितना 2 डिवाइड बाय में p + q वो हो गया 2 + 1 3 माइनस कर देंगे 7 माइनस कर देंगे 7 तो कितना आ गया 18 - 7/3 11/3 r तो अपना नहीं आया r फ्रैक्शन बन गया था ਇਹਦਾ मतलब कोई भी टर्म नहीं है जी x ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ ਜੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਨਨ ਆਫ क्योंकि x ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਦਾ क्योंकि r ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ अगर r ही सही नहीं हैगा तो x ਦੀ ਪਾਵਰ 7 नहीं आएगी ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋਗਾ ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ क्लियर चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ करो जी ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ r = np - k अपॉन p + q r n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਜੀ 9 p ਕਿੰਨਾ p ਹੈਗਾ 2 into 2 माइनस k कितना जी आ वाला k -9 डिवाइड बाय में p कितना 2 प्लस q 2 सॉरी 2 q कितना 1
तो कितना हो गई 18 प्लस हो जाएगा 9 अपॉन 3 तो हो गया 27 अपॉन 3 आ गया 9 आर की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई अगर अपन टर्म पूछी जाती तो टर्म बनती 10th ठीक है जी बट अपन कोफिशिएंट पूछा तो कोफिशिएंट हम फाइंड कर देंगे टी 9 प्लस 1 क्योंकि आता 9 है ये आएगा 9c 9c 9 x square upon 2 to the power 9 minus 9 the power 0 minus 2 upon x the power 9 ठीक है जी 9c9 कितना ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ x square ये भी सारा 1 हो गया पावर किसी दी भी 0 तो -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 और नीचे x ਦੀ ਪਾਵਰ 9 -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 यानी कि माइनस ਦੀ ਪਾਵਰ 9 तो माइनस 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 कितना होएगा 5 1 2 और x ਦੀ ਪਾਵਰ सॉरी x है ना x ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ये ऊपर जाके बन जाएगा x ਦੀ ਪਾਵਰ -9 ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ -5 1 2 ऑप्शन बी राइट क्लियर हो गया जी सब में क्वेश्चन हाँ जी क्लियर डन हो गया ना क्वेश्चन सब में क्लियर जी सबको क्लियर हो गया तो प्लीज दस दो एक बार फिर आप मूव करते हैं अगे आप की कीता r इज इक्वल टू NP माइनस के P प्लस Q आ फॉर्मूला लगा n दी वैल्यू कितनी सी 9 P दी वैल्यू कितनी सी 2 माइनस ऑफ माइनस K दी वैल्यू कितनी सी -9 पुट करती नीचे P प्लस Q P आ वाला हुंदा है Q आ वाला हुंदा ये हुंदा देखो जी XP 1 अपॉन XQ आ हुंदा जी सारा कुछ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ NP P प्लस Q ठीक है जी आ लगाया इतवार दी वैल्यू आ गई अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ 10th ਟਰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ t n+1 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ r+1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਤਾਂ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ n 9 ਪੁੱਛਿਆ 9c9 ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ 9c9 ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -500 ਵਾਲਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 9 ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ -9 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਓਨਲੀ -501 क्वेश्चन नंबर 17 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक है जी इस तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनना इन each Pascal's triangle each row is bounded by 0 2 -1 या 1 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ बहुत टाइम लग जाना इस पे ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ 1 ठीक है जी डायरेक्ट आंसर कितना 1 क्लियर आप ज्यादा टाइम लगा नहीं सकते वैसे क्वेश्चन बहुत लंबा है बट आप डायरेक्ट आंसर याद किया हुआ 1 ठीक है जी चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x दी पावर 6 फाइंड करना है y दी पावर 3 फाइंड करनी है इन द एक्सपेंशन केड़ी x प्लस 2y दी पावर 9 लगेगी इतने मल्टीनोमियल हम देखो एदा सम प्लस एदा सम ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ बिल्कुल मल्टीनोमियल लगा सकते हैं तो लगा दो मल्टीनोमियल अपन की कहती है x दी पावर r1 यानी कि 6 जेड़ा अपन ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ y 2y दी पावर कितनी 3 और नाल आएगा n फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल और r2 यानी कि 3 फैक्टोरियल एक ही बन गया x दी पावर 6 ਨੂੰ ਬਾਹਰ कर दो y दी पावर 3 भी बाहर कर दो अंदर रह गया 2 दी पावर 3 और 9 फैक्टोरियल नीचे रह गया 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर दो जी ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ फाइंड करना है 2 दी पावर 3 कितना हो गया 8 9 फैक्टोरियल ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 9 8 7 6 फैक्टोरियल ਦਾ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 2 1 ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 3 2 ਨਾਲ ਕੱਟਤਾ 4 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ 12 ਨੂੰ 7 ਕੀਤਾ 84 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ 2 67 672 ऑप्शन डी आंसर आ गया बस ये मल्टीनोमियल सी अपने को आ गया 672 आंसर डी ऑप्शन क्लियर हो गया सारा कुछ विद इन सेकंड अपने आंसर आ रहे थे
क्वेश्चन नंबर 19 द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दसनी है जी। हाँ लगा दो आल दा फॉर्मूला 18 एन 18 एन पी कितना 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 ना 18 अपॉन 3 6 आल 6 आ गया 6 आ गया तो लगा दो जी आर 6 टी 6 प्लस 1 18 सी 6 एक्स दी पावर 12 माइनस 3 from x दी पावर 6 x के 6 18 सी 6 x दी पावर 12 माइनस 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 दी पावर 6 का प्लस ही हो गया 3 दी पावर 6 और नीचे हो गया x दी पावर 12 हाँ कैंसिल ठीक है जी। तो आंसर आ गया 18 सी 6 3 दी पावर 6। देखो जी ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 18c63 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 1 ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ x - 1 upon x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 18 ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਟ ਇੱਥੇ 3 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ काउंट करना है जरूर काउंट करना है तो आंसर हम बनेगा बी ऑप्शन। केड़ा आंसर बनेगा बी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 द वैल्यू ऑफ 14c1 प्लस 14c3 प्लस 14c5 प्लस 14c11 ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है जी काफी रौला पाया है टेस्ट दे विच इहनूं आपां सॉल्व कर लैंदे हैं जरूर। तो हुण सब तो पहलां देखो जी अपने कोले अगर आपां देखिए ये ओड ने है ना एक ही ने ओड 1 3 5 11 बट अपने को ओड कितों तक जाने चाहिए सी 14c1 14c3 आ सब ठीक है लेकिन ये जाने चाहिए सी 14c13 तक फिर ਇਹਦਾ आंसर आप लिखते 2 ਦੀ पावर 14 - 1 फिर लिखना सी बट इत्थे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ गिवन है ओनली 11 ओनली 11 तो ਇਹਦਾ आंसर ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ आ गया ऑल ओवर ਇਹਦਾ आंसर आ गया 14c1 प्लस 14c3 अप टू विचाले जे कितने आएगा 14c11 और उस तो बाद आएगा 14c13 और ਇਹਦਾ आंसर आएगा 2 ਦੀ पावर 30 यानी कि आप 14 - 1 30 बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ आंसर ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 14c13 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ 14 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 13 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 14 into 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 14 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ 14 ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਹ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 30 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆ 14 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 13 - 14 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਡੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 13 - 4 इदा अपना है आंसर क्लियर हो गई सब क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर चलो जी क्लास ओवर 10 क्वेश्चन ही ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ 20 क्वेश्चन अपने ऑल ओवर हो चुके हैं कल ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਰਾਊਂਡ 32 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ MCQ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ MCQ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ सिर्फ रह जाएगा प्रीवियस ईयर 2 डेज और लगने ने अज की क्लास तुहानू किवें लगी प्लीज़ जरूर दस्सिओ शेयर करियो आपदे व्यूज़ ठीक है जी ते कमेंट जरूर कर दिया करो एट द एंड ऑफ वीडियो ठीक है जी क्लास खत्म होने तो बाद ते कल की क्लास इंपोर्टेंट रहेगी क्योंकि कल आपां सारे MCQ भी डील करने ने तो प्लीज़ लाइक कर दिओ वीडियो नू शेयर जरूर कर दिया करो आपदे फ्रेंड्स नाल अगर तुहाडी कोई क्वेरी हैगी है तो जरूर पूछ लो जी 2 मिनट अपने को टाइम हैगा अगर तुसी कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर पूछो तुहाडे आंसर दिते जाणगे 2-3 मिनट दे विच अगर तुसी पूछना चाहते हो तो अगर तुहानू किसी भी क्वेश्चन का इन्हां विचों
ਮਤਲਬ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਸੈਪਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਬੀ 12 13 ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਪਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੇ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।